تھا اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح عید تجدید کے وقت، کب؟ تجدید کا مطلب ہے نیو بگننگ۔ تجدید کا مطلب ہے کہ جیسے ہم اینیورسری مناتے ہیں، جیسے ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، اور اسی طرح ہماری زندگی میں سال بسال عیدیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ عیدیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح اس میں سے ایک عید کا ذکر ملتا ہے اور اس عید کا نام رکھا گیا ہے عید تجدید۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جب خدا نے اپنے خادم داؤد بادشاہ کو بادشاہ کے طور پہ بنایا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خداوند کے لیے کیا بناؤں گا؟ ایک ہیکل بناؤں گا۔ اس نے کہا میں تو ایک اچھی جگہ پہ رہ رہا ہوں، تو ضرور ہے کہ عہد کا صندوق، اس کے لیے بھی کیا کیا جائے؟ ایک گھر بنایا جائے، کیونکہ جہاں کہیں جاتے اور عہد کا صندوق ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ پھر جب انہوں نے آگے مزید اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا تو ان کے ذہن و دل و خیالوں میں خدا نے اس بات کو اجاگر کیا کہ عہد کے صندوق کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ جب بھی عہد کا صندوق ان کے درمیان آتا وہ للکارتے اور اس بات کا احساس ہوتا ان میں سے ہر ایک کو کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے، اور عہد کے صندوق کو وہ خیمے میں رکھتے۔ پے در پے جب وہ نافرمانی کرتے تو خدا دشمنوں کے کیا کر دیتا؟ ان کو حوالے کر دیتا۔ داؤد کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ ہوا اور خدا نے اس کو مقرر کیا، اور اس کے دل میں خیال میں ذہن میں یہ بات آئی کہ جو میرے باپ نے کام شروع کیا ہے میں ہیکل کو کیا کرنے والا ہوں؟ تعمیر کرنے والا ہوں۔ اور لکھا ہوا ملتا ہے جب اس نے ہیکل کو تعمیر کر لیا تو وہ خداوند اپنے خدا سے دعا کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیکل کو تعمیر کرنے کے بعد پھر بہت ساری قربانیاں گزرانی گئی، بہت سارے ذبیحے گزرانے گئے، شکر گزاریاں خداوند کے سامنے ڈیلی گئی، پیش کی گئی۔ اور آگے اگر ہم مزید دیکھیں تو لکھا ہوا ملتا ہے کاہن بھی خداوند کی حضوری کے سبب سے، ابر کے سبب سے وہاں پہ ٹھہر نہ سکے۔ سبب اور وجہ یہ تھی کہ خداوند آپ ان کے درمیان موجود ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح اس وقت اس دور میں ہیکل کو تعمیر کیا گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا، پھر وہ نافرمانی کرتے تو ہیکل ان کے ہاتھ سے چھن جاتی۔ کیا ہوتا ہے؟ ہیکل ان کے ہاتھ سے نہ صرف ہیکل ہی بلکہ یروشلم پر دوسری افواج آ کے کیا کر لیتی؟ قبضہ کر لیتی، اور پھر وہ اسیری میں چلے جاتے، اور پھر دوسرا بادشاہ اٹھتا، پھر وہ کوشش کرتا۔ جب مسلسل جنگیں چلتی رہیں اور پھر ساتھ ہی اس بات کو لیا جاتا ہے کہ ملاکی کے بعد متی کی انجیل اس سے پہلے سٹارٹ ہوتی، یوحنا استباغی آتا، 400 سال کا کیا ہے؟ گیپ ملتا ہے۔ اور ان اوقات میں بھی کیا ہوا؟ جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اور ایک کیتھولک بائبل میں ہمیں ترجمہ ملتا ہے، اس میں بکس جو لکھنے والے ہیں مکابین کا ذکر آتا ہے۔ مکابیوں نے بہت جنگیں کی، مکابیوں نے کیا کیا؟ ہیکل کو پھر سے لیا۔ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں جب دشمن نے حملہ کیا اور ہیکل میں وہ جو ظروف ہوتے وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے، پھر کیا ہوتا؟ بہت ساری چیزوں کو وہ جلا دیتے، اور نبیوں کو خدا بھیجتا ہے، پھر کاہن آتے ہیں، وہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیکل کو پھر سے تعمیر کرنے کے لیے کیا دیا جائے؟ روپیہ پیسہ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے۔ بہت سارے حوالے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن مختصراً میں آپ کے لیے آگے بات کرنے والا ہوں۔ کیا ہوتا جب ہدیے نذرانے ہیکل کی تعمیر کے لیے دیے جاتے
तो इतने हदिये, इतने नजराने हो जाते कि वो कहते कि बस 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 बहुत हो गए हैं। इतनी ईमानदारी के साथ खुदा के घर में हैकल की तामीर के लिए अपने आप को पेश करते कि ये खुदा का घर है, यरूशलेम के लिए। फिर आगे चलते हैं तो इसी तरह इन ईदों को जो मनाई जाती बड़े सिंसियर होकर संजीदगी के साथ खुदा के मज़बा पे आते हैं। इस ईद को हलूका भी कहा जाता, और फिर लोग क्या करते, उस याद को भी देखते कि कैसे हम मिस्र से निकले और खैमों में रहा करते थे। फिर वो खजूरों की डालियों को लेते और अपने घरों के ऊपर इस बात का इजहार करते, इकरार करते कि हम एक मुसीबत में से निकलकर, दुख में से निकलकर शादमानी में दाखिल हुए हैं। आज अभी इस वक्त इस दौर में मुझसे आपसे खुदा तवक्का करता है, आए हम अपने दिलों की हैकल को देखें। रुपया पैसा लगता है, खुदा का घर तामीर करना है, खुदा का घर बनाना है। मुझे याद आता है यूहन्ना के इंजील 4 बाब में लिखा हुआ मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह एक सामरी औरत से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते करते इस बात पर पहुंचते हैं, 20वीं आयत में लिखा है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। कहां पे है? यरूशलेम में है। वो औरत जो है खुदावंद यीशु मसीह से कहती है, जहां सामरी लोग बसते हैं, वो कहती है हमारे बाप दादा ने तो यहाँ पे भी प्रस्तिश की है। और यीशु मसीह को यहूदी होते हुए हैसियत कहती है कि आप लोग कहते हो कि यरूशलेम में प्रस्तिश करना चाहिए, वहां पे खुदा की हैकल है, वहां पे खुदा का तख्त लगता है, वहां पे खुदा मौजूद होता है। सो लिखा हुआ मिलता है, फिर से पढ़ूंगा, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम। खुदावंद यीशु मसीह उसके सामने बराबर करते हैं कि तुम पहाड़ों को छोड़ो। अब बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो बाप की रूह और सच्चाई से क्या करने वाले हों, प्रस्तिश करने वाले हों। ना इस पहाड़ पे और ना उस यरूशलेम के पहाड़ पे प्रस्तिश की जाएगी, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तरफ कायल करते हैं कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना है। जब खुदावंद यीशु मसीह सरेआम डंके की चोट पे साहब इख्तियार होकर तालीम दिया करते, तो फकीह फरीसी शरह के आलम वो सामने आते और वो कहते, तू ये बातें किस इख्तियार से करता है, हमें कोई निशान दिखा। बहुत सारी बातें करते। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इस हैकल को ढा दो, मैं कितने दिन में बना दूंगा? 3 दिन में। खुदावंद यीशु मसीह ने कौन से हैकल की बाबत कहा? अपने बदन के हवाले से। और यकीन मानिए, खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मरे, दफन हुए और कितने दिन के बाद जी उठे? वो कौल पूरा हुआ जो यीशु मसीह ने जीते जी लोगों को, शरह के आलमों को कहा कि इस मकदस को ढा दो, मैं फिर से इसे क्या कर दूंगा? नया बना दूंगा, तामीर कर दूंगा। आए अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर। मैंने और आपने खुदा की सुननी है और मसीह की पैरवी करनी है। किसकी सुननी है? यीशु मसीह ने भी कहा कि ये शरह के जो आलम कहते हैं ना, इनकी सुनो लेकिन इनकी पैरवी ना करो। लेकिन यीशु मसीह के हवाले से देखते हैं कि वो बाप की सुनते हैं और बाप के कलाम की पैरवी करते हैं। इसलिए मुझे और आपको खुदा बाप की सुननी है और मसीह की क्या करनी है? पैरवी करनी है। और बाइबल मुकद्दस में से मजीद अगर हम देखें तो उस वक्त, उस दौर में जब यरूशलेम को तबाह बर्बाद किया जाता तो लोग रोते, लोग पीटते, लोग आंसू बहाते कि खुदा का घर वीरान पड़ा है, खुदा की हैकल वीरान पड़ी है। नेहमिया की किताब में लिखा हुआ मिलता है, वो कहते हैं कि फाटक जो हैं,
जो फसीलें जो हैं और टूटी हुई हैं और आग से जले हुए हैं। कहता है हम जिल्लत का, हम रुसवाई का सामना करते हैं। वो आहें भरता है, वो दुआ में ठहरता है। आज खुदावंद मेरा और आपका खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके सामने अपने आप को पेश करें। कल हम देखते हैं कि खुदा ने हैकल को मखसूस किया, आज आपको खुदा मखसूस करता है। जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया है उसका नाम किताब हयात में लिख दिया गया है। आप खुदा की हैकल हैं, आप खुदा का मक़दस है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है जो इस हैकल को तबाह करेगा, इस हैकल को बर्बाद करेगा, वो क्या किया जाएगा? तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं? मुझे और आपको खुदा ने ब्लेस किया है, मखसूस किया है अपनी खिदमत के लिए, अपनी गवाही के लिए, अपने जलाल के लिए। जब यीशु मसीह को शहाना तौर पर यरूशलेम में लाया जाता है और डालियां और कपड़े बिछाए जाते हैं, बहैसियत यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम कर लिया जाता है, तो बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होकर हेरोदेस बादशाह, जहां पे बादशाह बैठा करते हैं, वहां जाते खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल का रुख किया। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की इंजील 21वां बाब बयान करता है जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में पहुंचे तो वहां पर जाकर कबूतर फरोशों को और दीगर तजारत करने वालों को वहां से निकाल दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ा पकड़ लिया, उन जानवरों को निकाल दिया। आज मैंने और आपने गौर करना है, क्या यीशु मसीह के अल्फाज वो मेरी जिंदगी में ऐसे ही तो नहीं आ रहे कि तुमने खुदा के घर को, जो दुआ का घर कहलाता है, डाकुओं की खोप बनाया हुआ है। जब दिल की सफाई होगी, जब हैकल की तकदीस की जाएगी, तो फिर बाइबल मुकद्दस के ऐन मुताबिक मुआवजा भी वकूअ पज़ीर होगा, शिफा भी होगी। फिर लंबी लंबी दुआओं का या रियाजत का कुछ भी जरूरत नहीं होगी। सबब यह है कि खुदा की हैकल क्या हो चुकी है? पाक हो चुकी है, साफ हो चुकी है। इफ्सियों का मुसन्नफ कहता है दुआ करें, वो फिर कहता है हमारे लिए भी दुआ करें। वो कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो, दुश्मन इब्लीस शैतान का मुकाबला करो। एक खास बात वो कहता है ताकि इब्लीस के शैतान के जलते हुए तीरों को, आज दुश्मन इब्लीस घर घर में लड़ाइयां डाले हुए हैं, ऐसे तीर हैं जिनके आगे आग लगी हुई है, थोड़ी सी बात होती है घर के घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, बहन भाई आपस में क्या सिलसिला चल निकला है। आए उस दुश्मन को पहचाने जो चुपके से छुप के वार करता है। जब आप उसे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो फिर आप उसका मुकाबला करेंगे तो खुदा आपको फतह से बढ़कर करवा देगा। इब्रानियों का मुसन्नफ यही कहता है कि उसने हमें नए सिरे से खल्क किया है, पैदा किया है, और हम उस हाथ के बनाए हुए घर की तरफ नहीं बल्कि खुदा ने जो मुझे और आपको चुना है इस बात को जानने वाले हों। इब्रानियों 9वां बाब पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक साफ बयान मिलता है। अजीजों, मुझे और आपको खुदा ने चुना है, मुकर्रर किया है कि ये मैसेज, ये कलाम एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक क्या हो, डिलीवर हो। कि मुझे बुलाया है, मुझे चुना गया है। क्या आप अपनी बुलाहट को, अपनी मखसूसियत को भूल तो नहीं गए? जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है उनका नाम आसमान की बादशाही में लिख दिया गया है। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनका आसमान की बादशाही में नाम अभी लिखने वाला है। जो है वो गलत है भाई, लिखने वाला नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। आए अपने आप को सरेंडर करें। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16वीं से 17वीं आयत तक
फिर पहला करंथियों छठे बाब की 15वीं आयत से 20वीं आयत तक यही लिखा हुआ मिलता है कि तुम खुदा का मक़दिस हो, तुम खुदा का घर हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आए अपने आप की तकदीस कीजिए, आए अपने आप को पाक कीजिए। वजह और सबब यह है कि उसने हमें पाकीज़गी के लिए बुलाया है, मैं पाकी के लिए नहीं। और फिर हम गुज़िश्ता दिनों भी सीखते हुए आए हैं कि यह बुलावा आसमानी बुलावा है। मेरा और आपका नाम आसमान की बादशाही में लिखा जा चुका है। और मुस्तकबिल का जो यरूशलेम है वो कैसा है? फाटकों के ऊपर हम्द लिखा हुआ होना चाहिए। और खुदा के जो घर की बुनियादें हैं उनके ऊपर भी इसी तरह हम और नजात की रागनी सुनाई देनी चाहिए। क्या मेरे अंदर जो खुदा का रूह है मैंने उसको बुझा तो नहीं दिया? क्या मुझे जब खुदा ने बुलाया था, चुना था, मुकर्रर किया था, मैं अपनी उस बुलाहट को भूल तो नहीं गया? फिर से रीबिल्ड कीजिए, फिर से अपने आप को तामीर कीजिए कि मुझे खुदा ने क्या किया है? बुलाया है, मुझे खुदा ने मुकर्रर किया है। आए हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे और खुदावंद अपने खुदा से कहने वाले होंगे, खुदावंद हमें फिर से तैयार कर है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक की हवा पाक खुदा तमाम बहनों भाइयों बेटे बेटियों के लिए दुआ करता हूं जो हमें ऑनलाइन देखते हैं। हाँ खुदावंद फिर से बेदार कर दीजिए, फिर से सरगर्म कर दीजिए। तूने बुलाया है, तूने मुकर्रर किया है। जिस तरह हम अपनी जिंदगी में एनिवर्सरी को, बर्थडे को मनाते हैं, हम जब बपतिस्मा लेने वाले हुए, रूहुल कुद्दुस को रिसीव करने वाले हुए, उस दिन को फिर से मनाने वाले हों कि खुदा ने मुझे तामीर किया, खुदा ने मुझे बुला लिया, खुदा ने मुझे मुकर्रर किया। आए अपनी हैकल की तकदीस करें। ये बदन उसका है, हम अपने नहीं हैं, हमारी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मर्जी पूरी होनी चाहिए। खुदा की सुने और मसीह की पैरवी करें। उसने इसी तरह किया, उसने कहा बाप तेरी मर्जी पूरी हो। आए कहने वाले हो खुदावंद हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यकीन मानिए खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े और अजीब काम करना चाहता है। आए उसके सामने सरेंडर करें। जो दुआ कराना चाहता है वो प्लीज आगे आ जाए। हालेलुया बारा 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 मोर रे बेरे 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 या जार ला बारा 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 करने वाले हो। ये हैकल पाक रहे ताकि अंधे देखें, लंगड़े चले, गूंगे बोलने वाले हो, बहरे सुनने वाले हो, मुर्दे जिंदा होने वाले हो, गरीबों को खुशखबरी का, कैदियों को रिहाई का पैगाम सुनाया जाए यीशु के नाम में। खुदावंद ये जमात तेरी है, ये कलीसिया तेरी है, ये मसीह का बदन है ताकि मसीह का बदन पाक हो, बेऐब हो, चोरियां ना हो, दबे ना हो। यीशु के नाम में गिनतियां जाए, रसौलियां जाए, कैंसर जाए, किडनी की प्रॉब्लम जाए, लीवर की प्रॉब्लम जाए, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। इन दिनों जो डेंगू का वायरस चल रहा है और जिसके सबब से प्लेटलेट सेल कम हो जाते हैं, प्लेटलेट सेल नॉर्मल हो जाए, आरबीसी नॉर्मल हो जाए, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल हो जाए, तेरी शिफा आ जाए, तेरा मौजूद हो जाए, बीमारियां जाती रहे, कमी कमजोरियां जाती रहे। आज के कलाम के वसीला से फिर से तेरी हैकल तामीर हो जाए, फिर से तेरी हैकल तेरे जलाल के लिए पाक और साफ हो जाए। तेरा कादम यशाया कहता है खुदा की हैकल खुदा के जलाल से मामूर है। आज हम खुदावंद तेरी हैकल को तेरे जलाल से मामूर देखते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ खुदावंद दुआ करता हूँ फिर से नज़ले ज़ुकाम को दूर कर, गले की खराबी को दूर कर, बुखार की अलामत जाती रहे, वीकनेस जाती रहे, कमी कमजोरियां जाती रहे, तेरी शिफा आ जाए, तेरा मौजज़ा आ जाए, तेरा रहम आ जाए, तेरा दर्द आ जाए, तेरा फजल आ जाए। जो भी है खुदावंद
मंदिर की इबादत में आते हैं। तेरे बेटे बेटियां अपनी शिफा को लेके जाते हैं, अपने मोजे को लेके जाते हैं, बहुत सारी गवाहियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे इज्जत और जलाल देते हैं। हम खुदावंद शुक्रगुजारी के साथ तेरी मज़बा पे आते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए तेरी बारगाह इक़्क़दस में दाखिल होते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े अजीब काम किए हैं। दुआ करता हूँ फिर से बेऔलाद लोगों को औलाद दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, बेबस लोगों को उम्मीद दे, अनमैरिड बेटे बेटियों को अच्छे लायक पार्टनर दे, जिनका नाम किताबे हयात में लिखा हो, जिनका जिक्र आसमान की बादशाही में हो। ना हमवार जुए से बचा, सेपरेशन से बचा, तलाक से बचा, अलैदगी से बचा, घरों को टूटने से बचा, तेरे घर तुझसे तामीर बने। हाँ खुदावंद, तमाम बहन भाई जो तेरी मुकद्दस हैकल में आते हैं उनके लिए बड़ा शुक्र। जो आज के दिन नहीं आए उनको नेक्स्ट मंडे मांगे ताकि वो अपनी शिफा को लेके जाएं, अपने मोजे को लेके जाएं और जिंदगी बश कलाम को लेके जाएं। हाँ खुदावंद, बादशाही के रोज रोज हम प्यार होते चले। यीशु का नाम, यीशु ने सिखाया।